لیٹس ٹاک میں آج ہم بات کریں گے کچھ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے. ٹرانسپورٹیشن میں ہم بات کریں گے خاص طور پر اوبر کی اور تھوڑی سی ٹیکسی کی بھی، اور کچھ گورنمنٹ کی ریگولیشنز اور کچھ لوگوں کے جو خاص طور پر اوبر یا رائڈ شیئر چلانے سے جو لوگوں کے دماغوں کے اوپر جو امپیکٹ آ رہے ہیں اس کے اوپر ہم یہ 3-4 ٹاپکس ہیں جو ان کے اوپر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم اوبر کی کہ اوبر کیا ہے. اوبر کھلے لفظوں میں بتاؤں، بہت سارے لوگوں کو یہ میری ویڈیو جو ہے شاید پسند نہیں آئے گی جو اوبر لور ہیں یا اوبر ڈرائیو بھی کرتے ہیں، لیکن میں چونکہ فیکٹس کے اوپر بات کروں گا اور کچھ بیٹر ٹروتھ جو ہے ان کو بھی واضح کروں گا. تو اوبر جو ہے بیسیکلی اٹس اے اسکیم. اٹس لکس لائک اٹس اے بگ کمپنی بٹ اٹس اے اسکیم. ہاؤ دے ورک ود دا اتھارٹیز اور جو لوکل اتھارٹیز کے ساتھ یہ مل کے کیسے کام کرتا ہے وہ ان کو بھی انوالو کرتا ہے. جیسے جو ہمارے چونکہ میں نیو ساؤتھ ویلز میں ہوں تو سڈنی میں ہوں، تو سڈنی میں جو ہے نیو ساؤتھ ویلز میں ہمارے پاس جو ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹرانسپورٹ کمیشن ہے جو اس کو آپریٹ ریگولیٹ کرتا ہے اوبر کو یا رائڈ شیئر کو، جتنی بھی جو کمپنیز ہیں ان کو. تو اب ایک طرف دیکھیں تو یہ کچھ لوگوں کا فائدہ بھی ہے اور کچھ لوگوں کا نقصان بھی ہے. نقصان کیسے ہے؟ فائدہ جن لوگوں کو رائڈ سستی مل رہی ہے دے آر ہیپی ود اوبر، ان کے گھر کے سامنے آ رہی ہے گاڑی، تو دس اینڈ دیٹ بلا بلا بلا. اس کے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نہیں بتانا چاہ رہا. تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے. لیکن انہی لوگوں کے ساتھ، انہی اوبر رائڈر کے ساتھ جو اوبر ایز اے رائڈ یوز کرتے ہیں، ان کے دماغوں کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے یہ بھی جو ہے ان کو پرائس زیادہ بڑھا کے، جیسے جسے ہم سرج پرائس کہتے ہیں، اس کو بتانا، تو پھر پیسے ان سے زیادہ چارج کرنا. تو یہ اس میں دو چیزیں جو ہے اوبر لوکل اتھارٹیز کو جو وہ اٹریکٹ کر کے بتا رہا ہے کہ ایک تو گورنمنٹ کو وہ پر ٹرپ کے حساب سے لیوی ہے وہ دیتا ہے. دوسرا اس نے ایک اور گورنمنٹ کے لیے ایک ارننگ جنریٹ کر دی ہے، جیسے سی ٹی پی جو ہے تھرڈ پارٹی کمپریہنسو انشورنس کا جو ہے اس کو جنریٹ کیا ہے. یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی اینڈ آئی ہوپ کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، بٹ آئی ہیو ٹو سے. اچھا، گورنمنٹ خوش ہے اوبر کے ساتھ یا رائڈ شیئر کے ساتھ، خاص طور پر اوبر کے ساتھ، کہ اوبر نے ان کے لیے ایک ریونیو جنریٹ کیا ہوا ہے. سو اوبر گورنمنٹ از ویری ہیپی. اب اس کے فیکٹس جو ہیں، اس کے جو نقصانات جو ہو رہے ہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں. اگر یہ میری بات ہائر اتھارٹی تک جا سکتی ہے دیٹ ول بی ریئلی ویری گڈ. اب اوبر ڈرائیور جو ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں سے بات چیت کی ہے. اوبر ڈرائیورز دے آر سو فرسٹریٹڈ. اگر دیکھو، میں اگزامپل دیتا ہوں، اگر اوبر آپ کو $31-32 دے رہا ہے پر آور کے حساب سے، چونکہ اوبر بیسڈ آن پر آور کے حساب سے دیتا ہے، جس میں $32 اگر دے رہا ہے، $31 دے رہا ہے، تو وہ جس میں آپ کی وہیکل، آپ کا ٹائم، آپ کا وہیکل کی رننگ کاسٹ ہے. تو یہ چیزیں کرنے کے بعد ابھی آج صبح مجھے ایک دوست بتا رہا ہے، تو کمپیریزن کر رہے تھے وہ ٹیکسی کا اور اوبر کا. تو اس نے تقریباً میرا خیال ہے 3 گھنٹے میں پروبلی اس نے $190 بنائے، اور اس کی ریپلیسمنٹ اس کے ڈرائیور جو ٹیکسی ڈرائیور تھے انہوں نے اس سے زیادہ پیسے بنائے. ویٹ ٹائم بھی کم ہے اور سٹریس بھی نہیں ہے اتنا، جو سواری ملے گی لے لینی ہے. تو یہ لوگوں کے لوکل جو لوگ ہیں، گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ
जो इस स्ट्रेस से जो ड्राइवर हैं, ऊबर ड्राइवर जो हैं, जो उनका स्ट्रेस है, वो गवर्नमेंट उसको नहीं देख रही। गवर्नमेंट सिर्फ देख रही है अपने बेनिफिट को, कि वो उनके लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो लोगों, ऑस्ट्रेलियन जो कम्युनिटी है, अगर उनके नुकसानात, दिमागी नुकसान हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, आहिस्ता 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 ग्रेजुअली जो कम्युनिटी का जो स्ट्रेस है वो बढ़ रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ, मेरी पिछली वीडियो भी आपने देखी होगी, मैंने उसमें कुछ अदल व इंसाफ की बात की थी कि यहाँ ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता अब रोड्स के ऊपर, सिडनी के रोड्स के ऊपर जो है वो स्ट्रेस बढ़ रहा है। लोग, पहले यहाँ इतनी बीपिंग्स नहीं होती थी, गाड़ी का कोई बीप नहीं करता था, तो अभी बीप्स हैं, लोग रेड लाइट को भी तोड़ रहे हैं। और कुछ नए ऐसे ड्राइवर आए हैं, कुछ लोग हैं जो वहाँ के, जिस मुल्क से भी आए हैं वहाँ के, वो असूल ज़ाब्ते जो ड्राइविंग के वो वहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ। बट इन फैक्ट ये क्या है? ये सारा सोसाइटी का, लोकल सोसाइटी का नुकसान हो रहा है। अगर गवर्नमेंट कुछ पैसा बना रही है, कुछ दे रही है लोगों को, कोई मदद कर रही है सेंट्रल लिंक की मदद से या सोर्स से या कैसे भी, तो ये ओवरऑल ये बिज़नेस जो है ऊबर का, ख़ास तौर पे मैं कहूँगा जो बिज़नेस है, ये सोसाइटी को दीमक की तरह ये चाट रहा है, खा रहा है। तो गवर्नमेंट मस्ट लुक इनटू द सिस्टम कि इसको, ऊबर को अगर थोड़े, जिसको पैसे कह रहे हैं कि जी हम हाँ पैसे दे रहे हैं लोगों को, जो ऊबर ड्राइवर हैं उनको हम पैसे मिल रहे हैं, चलो उसका घर चल रहा है, हमारे गवर्नमेंट के ऊपर कुछ कम बोझ है। पर दूसरी तरफ ये भी तो देखो, उस बंदे ने जिसने 3 घंटे में $100 बनाया है, उसके दिमाग की जो चटनी बन रही है वो कौन देखेगा? तो गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ों के ऊपर भी देखने की, सुनने की, सोचने की ज़रूरत होनी चाहिए। मैं ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं, ऊबर जहाँ भी है ये ऐसे ही कर रहा है। तो गवर्नमेंट को साथ मिला लेता है और उसके हवाले से गवर्नमेंट को कुछ वो लालच मिल जाता है पैसे आने का। पर अदर साइड हाउ दे आर डैमेजिंग द सोसाइटी को, ब्रेन जो दिमाग है वो स्ट्रेस से, एंजाइटी से। अब मैंने देखा है ऊबर ड्राइवर्स को ऐसे, वो फ़ोन पकड़े हुए हैं, बार बार उसको देख रहे हैं, और टॉयलेट में भी जाना है वहाँ भी वो आपके साथ ही जाएगा, यू नो। और सो मैनी थिंग्स, यू नो। हो सकता है आप ऊबर ड्राइवर हो, आप अच्छा कर रहे हो, बट ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ जो एक सोसाइटी में चल रही है। जो मेरी आप बात को पसंद करते हैं, डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिखें इसमें क्या ऐसी इम्प्रूव होनी, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि ये ऐसी वीडियो बनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है। क्योंकि मैंने सीखा यही है हमेशा कि सच की, हक की बात करनी है। जहाँ कहीं को आवाज़ कम है उस आवाज़ को उठाना है। अभी पिछले दिनों मेरी वाइफ कह रही है कि वो आपने जी क्यों उठानी है, तो मैंने कहा यार मेरे पास यही है, मेरे पास सिर्फ है यही मेरी जमा पूंजी है कि मैं इंसाफ की, हक के लिए बात करूं। अगर किसी के लिए भी बात कर सकता हूं तो करूं, यू नो। आई नो इट्स नॉट फॉर मी, बट एटलीस्ट जो लोगों को नुकसान हो रहा है, जो दिमागों के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है, तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है हम बेवकूफ़ कम्युनिटी या बेवकूफ़ सोसाइटी बन जाएंगे। ठीक है, काम चल रहे हैं सारे, एवरीथिंग, बस स्लोली ऐसी चीज़ें जो हैं वो डैमेज करती हैं। अच्छा, मैंने शुरू में जैसे बोला कि हम टैक्सी की भी बात करेंगे, थोड़ी सी बात हम करते जाएंगे टैक्सी की। अगर जहाँ ऊबर बड़ी तेज़ी के साथ पिछले 10-12 सालों में ऑस्ट्रेलिया में ये मकबूल हुआ है, इसने अपनी जगह बनाई है, डेफिनेटली एक न्यू आइडिया था। तो जो असल में न्यू आइडिया है, जो उसके फ़ायदे जो हैं उसको आप एक जगह पे रख लो, जो उसके नुकसान आता है उसकी बात हम कर रहे हैं। चूँकि हम बात कर रहे हैं, हमारा फोकस
फ़ायदे के ऊपर नहीं है, हमारा जो मौक़िफ़ है, जो हम बात करना चाहते हैं, मैं जो बात करना चाहता हूँ वो नुकसानात के, कि इसके नुकसानात जो है कितने। ट्रांसपोर्टेशन में हमारे साथ पहले ऑलरेडी टैक्सी इंडस्ट्री थी, टैक्सी इंडस्ट्री अभी भी है, और इसको टैक्सी इंडस्ट्री को इस तरह बैडली इसको डैमेज करके रख दिया है ऊबर ने। और जैसे कि मैंने शुरू में बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो खुश है, ऊबर ने कुछ ऐसा जनरेट किया है रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को फ़ायदा आ रहा है। और टैक्सी वो इतना नहीं करती थी ना, वो पहले करती थी। तो अब टैक्सी ड्राइवर्स के ऊपर भी स्ट्रेस है, ये नहीं है, चूँकि काम उस कदर नहीं है जितना टैक्सी का काम होता था, और ऊबर ड्राइवर के पास ज़्यादा काम है। अब ऊबर जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, जैसे मैंने बताया। अब भी एक जो मीडियम या स्टैंडर्ड एक एवरेज जो ड्राइवर है ऊबर का, जो फुल टाइम काम करता है, वो 70 से 80 घंटे काम करता है, फिर कहीं जाके उसको वो 2500 या 3000 जितने भी वो वीक के पैसे बना रहा है। तो इसका मतलब है वो डबल काम कर रहा है, 40 घंटे की बजाय तो वो डबल काम कर रहा है। और उस तरह उस सेंस में भी देखें तो ड्राइवर्स को कितना डैमेज किया जा रहा है। अब ये ड्राइविंग एज ए ऊबर ड्राइवर इसको ड्राइव करना, ये भी एडिक्शन हो चुकी है कई लोगों की, जो मैं देख चुका हूँ, मैं जानता हूँ कई लोगों को, मजबूर भी हैं फिर भी वो ऊबर कर रहे हैं। इसी तरह पैसेंजर जो हैं वो मजबूर तो नहीं है, लेकिन दे आर हैप्पीली डूइंग। और इस कदर ये टैक्सी इंडस्ट्री को भी ऊबर डैमेज कर रहा है। तो ऊबर स्लोली एक उनकी जो है फ़ी बहुत ज़्यादा है, जो एक ऐप के हवाले से इतनी हाई फ़ी जो है, दैट्स टू मच। 27.5 वो कहते हैं हम लेते हैं, लेकिन मेरे ये देखने में आया है, मेरे पास कुछ एविडेंसेस भी हैं कि ऊबर मोर देन 50% चार्जिंग। ऊबर जो है वो ड्राइवर को बता रहा है कि मैंने आपके फेयर से जो है वो 27.5% जो है कमीशन ले ली है, बाकी चीज़ें कटा के, और सीटीपी लेवी और दूसरे एक्सपेंस काट के, तो बाकी जो है आपको हमने दे दी है। अब ये इस लेवल पर, ये ड्राइवर के लेवल तक है। अब पैसेंजर से वो पैसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है, और वो हाइड है, वो किसी को नज़र नहीं आ रहा। और बल्कि मैं तो कहूँगा कि गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है, पॉइंट टू पॉइंट कमीशन जो है, उसको ऐसी चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। कंपैरिजन करो, अगर एक ड्राइवर के बिहाफ पे एक इनवॉइस ऊबर जनरेट करके पैसेंजर को दे रहा है, ठीक है, ईमेल के थ्रू, और उसकी प्राइस फ़र्क है, जो इनवॉइस ड्राइवर के पास जनरेट हुई है वो फ़र्क है। सो आई एम प्रिटी 100% श्योर ऊबर जो है इसको एक किस्म का ये जो है ऐसा भी कर रहा है, चूँकि उसको इजाज़त दे दी है। वो समझ लो, दूसरे लफ्ज़ों में तो मैं ओपनली कहूँगा कि ऊबर इज़ लाइक एल्डर सन ऑफ पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्ट कमीशन। उसको इतने प्रिविलेज, इतने जो उसको वो राइट्स दे रहा है, सिर्फ थोड़े से फ़ायदे के लिए, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एक सीटीपी की मद में, और दूसरी तरफ उसके हवाले से लेवी के हवाले से। तो बाकी ऊबर जो है वो मुझे भी ये भी श्योर है कि ऊबर जो है वो टैक्स प्रॉपर नहीं पे करता। जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं वो किसी कंट्री में भी टैक्स नहीं सही पे करती हैं, फ़ाइन की सूरत में पे कर दिया। तो ओवरऑल में, चूँकि हम बात कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये नुकसान हो रहा है, ऊबर ड्राइवर्स के स्ट्रेस के लेवल की बात हम करें तो वो भी जो है इम्पैक्ट हो रहा है, डैमेज हो रहा है, ठीक है। और बैड इम्पैक्ट है ये ऊबर के काम करने के हवाले से। और चूँकि उसको खुली छुट्टी मिली हुई है, जो वो काफ़ी चीज़ों को ब्रिज कर रहा है, तो एक्शन लेना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्ट कमीशन को इसके हवाले से। और टैक्सी इंडस्ट्री को भी जो है वो
उतना हक देना चाहिए। जैसे ऊबर है, अगर ऊबर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि ऊबर जो है वो देखो एयरपोर्ट के ऊपर नहीं पिक कर सकता, मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की। उसको ओवरनाइट, एक नाइट के अंदर अंदर ही जो है एक रेगुलेशन को चेंज करके और ऊबर को एयरपोर्ट को पिक करने की इजाज़त दे दी, जिसकी वजह से अब टैक्सी ड्राइवर्स को काफ़ी प्रॉब्लम है, उनका काम कम हो गया। तो इस स्ट्रेस को, टैक्सी ड्राइवर्स के स्ट्रेस को कौन देखेगा? ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है ये पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्ट कमीशन जो है उसको वेरी कीनली ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए। अगर उनको कोई, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी करें, और मैं वैसे आमतौर पर कहता नहीं हूँ, बट इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर भी करें, और अपने जो व्यूज़ जो हैं, पॉइंट्स जो हैं, कमेंट्स अपने ज़रूर दें। चलें, थैंक यू वेरी मच, अगली वीडियो में मिलते हैं।